سری نگر کی آواز ہے۔ شام کے 7 بج چکے ہیں، سماعت کریں حالات حاضرہ کا پروگرام شہربین۔ شہربین آپ تک پہنچانے میں ہمارے ساتھ تعاون کر رہے ہیں خیبر سیمنٹس، مضبوطی اور پائیداری کی ضمانت۔ خیبر سیمنٹس، اپنی تعمیرات دل سے بنائیے۔ شہربین کے سامعین کو اشفاق لون کا سلام پہنچے۔ آج کے خاص موضوعات ہیں: وادی میں موسم بہتر ہوا، درجہ حرارت میں اچھال آیا۔ وزیر اعلی عمر عبداللہ نے برف باری سے پیدا شدہ صورتحال کا لیا بغور جائزہ۔ ڈوڈا اور کشتواڑ میں متعدد علاقے ہنوز آمد و رفت کے لیے بند، اور بجلی محکمے کے انجینئروں نے لی اپنی اسٹرائک کال واپس۔ موضوعات کی تفصیل ذرا دیر بعد۔ محبت وہی جو دل سے ہو، عبادت وہی جو دل سے ہو، دعا وہی جو دل سے نکل آئے، بات وہی جو دل سے کہی جائے، دوست وہی پکا جو دل سے ساتھ نبھائے، رشتہ وہی بے جوڑ جو دل سے جوڑا جائے۔ دل سے ہی تو ہوتے ہیں ارادے چٹان سے، دل سے ہی تو بنتے ہیں گھر خالی مکان سے۔ دل سے بنی ہر چیز پشتوں تک چلتی ہے، اس لیے خیبر سیمنٹ کا ذرہ ذرہ دل سے بنا ہے، تاکہ آپ جو کچھ بھی بنائیں دل سے بنائیں۔ خیبر سیمنٹ، دل سے بناؤ۔ زندگی کے مشکل موڑ پر کینسر سوسائٹی آف کشمیر کی کرٹیکل کیئر ایمبولینس سروس ہمیشہ آپ کے لیے دستیاب۔ وادی کے ہر کونے میں ہر ضرورت میں پائیے کرٹیکل کیئر ایمبولینس سروس صرف 25 روپے ہر کلومیٹر پر، سری نگر ایئرپورٹ تک صرف 40 روپے ہر کلومیٹر پر۔ ایشوڈ ان پبلک انٹرسٹ بائی کینسر سوسائٹی آف کشمیر، سری نگر۔ کال 6006095505۔ ہر گاؤں، ہر شہر، ہر گلی، ہر ڈگر خدمت سینٹرز پہنچائیں بینک کو آپ سب کے گھر۔ بینکنگ کے ساتھ ملتا یہاں پیسے کا کام ہوتا آسان۔ کیش ڈپازٹ، ودرالز، بل پیمنٹ یا آدھار اپڈیٹ، خدمت سینٹرز آپ کا وہی اپنا بینکنگ کا ساتھی۔ جانکاری ہی سمجھداری ہے، اور CSR انیشیٹو آف J&K بینک آپ کا اپنا بینک۔ شہربین آپ آکاشوانی سری نگر سے میڈیم ویو اور FM کے علاوہ آکاشوانی کپواڑہ اور بھدرواہ کے ساتھ ساتھ DTH اور آکاشوانی کے موبائل ایپ پہ سن رہے ہیں۔ سمن وادی کشمیر کے بیشتر علاقوں میں کل رات سے برف باری تھم گئی ہے۔ تازہ برف باری کے نتیجے میں وادی بھر میں درجہ حرارت نمایاں طور پہ بہتر ہوا ہے۔ سری نگر میں کل رات کا درجہ حرارت -0.2 ڈگری ریکارڈ کیا گیا، جبکہ دیگر مقامات پر بھی درجہ حرارت میں خاصی بہتری آ چکی ہے۔ البتہ صحت افزا مقامات گلمرگ، سونمرگ اور پہلگام میں درجہ حرارت -8 ڈگری کے آس پاس ہے۔ ادھر وادی کشمیر میں تازہ برف باری سے پیدا شدہ صورتحال کا جائزہ لینے اور عوامی سہولیات کی بحالی کے ضمن میں لازمی معلومات کے حصول کی خاطر آج وزیر اعلی عمر عبداللہ نے ایک جامع میٹنگ کی صدارت کی، جس میں وزیر اعلی کے مشیر ناصر اسلم وانی، چیف سیکرٹری اٹل ڈلو، وزیر اعلی کے ایڈیشنل چیف سیکرٹری دھیرج گپتا، صوبائی کمشنر برائے کشمیر اور جموں، مختلف انتخابی حلقوں کے ارکان اسمبلی اور ڈپٹی کمشنر موجود تھے۔ ویڈیو کانفرنس کے ذریعے منعقدہ اس میٹنگ کے دوران وزیر اعلیٰ کی زیادہ تر توجہ بجلی، پانی اور صحت عامہ کی خدمات اور برف ہٹانے کے کام پہ مرکوز رہی۔ میٹنگ میں وزیر اعلیٰ موصوف نے تلقین کی کہ آئندہ ہفتے میں ممکنہ برف باری کے پیش نظر تیاریوں کو مزید بہتر بنایا جائے۔ علاوہ ازیں انہوں نے حالیہ موسمیاتی پیشن گوئی اور اصل موسمیاتی صورتحال میں پائے گئے تفاوت کے پیش نظر متعلقہ تیاریوں کے لیے بہتر اقدامات کرنے پر زور دیا۔ حالیہ برف باری کے نتیجے میں جہاں ڈوڈا اور کشتواڑ کے لوگوں کو طویل وقت تک جاری رہنے والی خشک سالی سے نجات ملی ہے، وہیں مذکورہ ضلعوں کے بالائی علاقوں کی سڑکیں آمد و رفت کے لیے بند ہو چکی ہیں، جس کے نتیجے میں مقامی آبادی گناہ مسائل و مشکلات کا سامنا کر رہی ہے۔ یاد رہے کہ پچھلے 1.5 ماہ کے دوران کشتواڑ اور ڈوڈا کے جنگلوں میں آگ لگنے سے لاکھوں روپے مالیت کی عمارتی لکڑی کا زیاں ہوا رہا۔ البتہ حالیہ برف باری اور بارشوں کے طفیل یہ آگ بجھ گئی ہے۔ اسی دوران ڈوڈا اور کشتواڑ کے درجنوں علاقوں میں بجلی اور پینے کے پانی کی فراہمی متاثر بتائی جاتی ہے۔
बिजली में मुसलसल खलल पड़ने के नतीजे में लोग न तो सख्त सर्दी के इन अय्याम में गर्मी का कोई माकूल इंतजाम कर पा रहे हैं और न ही अपने फोन चार्ज करने की हालत में हैं। इसी तनाजुर में एक रिपोर्ट के साथ पहले नसीर अहमद खोड़ा। कई माह की खुशकसाली के बाद गुज़श्ता दिनों की बारिशों और बर्फबारी से जहां एक तरफ आम लोगों के साथ साथ खिताई चनाब के जिला डोडा में जमींदारों ने खुशी और राहत की सांस ली, वहीं दूसरी तरफ बालाई इलाकाजात की आबादी ने इस बर्फबारी से पैदा शुदा सूरत हाल की मुश्किलात से भी आगाह किया, जबकि अवामी हलकों ने इस बर्फबारी को बरवक्त और वक्त की जरूरत करार देते हुए बताया कि खिताई चनाब के गन्ने जंगलात गुज़श्ता 3 हफ्तों से आग की लपेट में थे और हजारों की तादाद में सरसब्ज़ दरख्त जलकर खाकसर भी हुए और आग फैलते ही जा रही थी कि महकमा जंगलात के मुलाजमीन कंट्रोल करने में बुरी तरह नाकाम हो रहे थे कि खुदा की कुदरत जोश में आई और कुदरत का करिश्मा ये हुआ कि रहमत बारह और बर्फबारी ने इस सुलगती आग को आनन फानन में ठंडा कर दिया और इसे एक माह से धुएं से गहरा हुआ आसमान साफ और आज धूप ने दस्तक दी। जिला डोडा के बाद इलाकाजात में अच्छी खासी बर्फबारी होने के नतीजे में पीने के पानी की सप्लाई लाइनें टूट चुकी हैं, जिसकी वजह से खासकर कस्बा डोडा बदरवा में पीने की पानी की सप्लाई आज दूसरे दिन भी मुतासर रही, जबकि कस्बा डोडा के मुख्तलिफ इलाकों में पानी सप्लाई होने वाली नालियां टूट फूट का शिकार हुई हैं, जिसकी वजह से मुख्तलिफ जगहों की आबादी को पानी की किल्लत का सामना है। जिला डोडा के दूर दराज देहात में बर्फबारी के नतीजे में आज 3 रोज से बिजली का निज़ाम भी दरहम बरहम हुआ है, जिसकी वजह से इन देहात की आबादी को सर्दी के इन अयाम में सख्त तरीन मुश्किलात का सामना है। गुंदो बलेस, ठाठरी, कासीगढ़, मरमत, बदरवा, मठोला, थनाला, बड़ा गुंदना, लुडना व आबली मासरी की आबादी ने शहरबीन को बताया कि मामूली सी बारिशों और बर्फबारी में उनको ट्रांसफार्मर से ही बिजली काट दी जाती है और मौसम साफ और खुशगवार रहने के सिलसिले में उनकी बिजली बहाल की जाती है, जबकि लुडना, गुन्ना, कासीगढ़, मरमत, बाहला, बगला परत गाँव के लोगों ने शहरबीन को बताया कि बिजली की तरसीली लाइनें और इलाके का ट्रांसफर नुकसान होने के सिलसिले कई हफ्तों कई महीनों का इंतजार करना पड़ता है और इसके बाद ही नया ट्रांसफार्मर नस्ब किया जाता है और सख्त सर्दी में इनको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कल दिन की बर्फबारी में कस्बा डोडा का एक ट्रांसफार्मर जो कि 5 बड़े महलों को बिजली फराहम करता है जलकर राख हुआ है और यहाँ की मुकामी आबादी को बिजली के अदम दस्तयाबी का सामना है, जबकि बिजली हुकाम डोडा, बदरवा, ठाठी, गुंदो बलेस व बटोत ने बिजली सार्फिन से अपील की है कि वो बिजली का नाजायज इस्तेमाल से गुरेज करें और पीक आवर्स में हीटर, बॉयलर व दीगर बिजली से चलने वाले आलात का इस्तेमाल न करें। नाव तनवीर अहमद मलिक बर्फ गाम कोई हर वरी से ये परेशानी यवने की बर्फबारी से गसन ज्यादा पेवन नाव फटन आग सप्लाई से मुतासर गसन बिजली सप्लाई से मुतासर गसन मगर अफसोस है कि बिजली डिपार्टमेंट से ना यह दोख कर हवाल कर कि जिसमें जरा थोड़ा सा अबुर आओ ना आसमान तब से करन बिजली मालूम तो करन की क्या वजह से बिजली के रहा कटना हम से वन फॉल्ट आओ फॉल्ट आसान कुनी जो सबसे बड़ धोखा इस लगन खास दूर दराज इलाक से अमन इलाके से लोगन तब में मुसलसल की ऐसा बिजली अमन तो शाम शायद थोड़ा सा कम टाइम बस आधा घंटा कभी कभार 35 मिनट भी हो सकता है, हमने गिना नहीं, लेकिन बस इसी टाइम के आसपास बिजली होती है। बाकी को इसके फोन मोबाइल से इसे स्विच ऑफ ये हाल सारी है मोबाइल इनसे स्विच ऑफ डिस्कनेक्टेड पूरी दुनिया से से मोबाइल भी चल इसके गुस्सा की दुनिया में क्या से चलने लगे बाकी इलाके में क्या से लोग करें अगर बिजली ऐसा तो तमाम बाकी सिस्टम जो मुतासर करते। डोडा से नसीर अहमद खोड़ा की रिपोर्ट आपने सुनी और अब रुख करते हैं किश्तवाड़ का, जहां से मुश्ताक देव जिले में बर्फबारी के बाद की सूरत हाल का अहवाल बयां कर रहे हैं। जिला किश्तवाड़ में पिछले लगभग 2 अयाम में अवलन जो बारिश बारानी और माह बाद इसके बर्फबारी हुई, इससे किसानों, जमींदारों और मालकान बागात के चेहरों पर मुस्कुराहट नुमाया हो गई है। जिला किश्तवाड़ जो उमूमी तौर पर खुशक साली से मुतासिर रहता है और मौसम गर्मा में पीने के पानी की कमी का शिकार रहता है, में कई महीनों से बारिशें नहीं हुई थी। इन दिनों हुई बारिश बारानी और बर्फबारी की वजह से अवाम ने कदरे राहत की सांस ली है। चिंतन टाप पर 7 फुट, चिनगाम में 1.5 फुट, मचेल में 2.5 से 3 फुट,
इंशन वार्डन में 2.5 फुट और मरगन टाप पर 4 फुट बर्फ जमा होने की इत्तलात मिल रही है। चंदन टाप और मरगन टाप की सड़कें गाड़ियों की नकल हमल के लिए बंद कर दी गई है। जिला सदरनगर किश्तवाड़ में 8 इंच बर्फ जमा हो गई है। अगर जिला इंतजामिया ने अहम सड़कों पर से बर्फ हटाई है, ताहम कस्बा के कुछ वार्ड की सड़कों में अभी तक बर्फ मौजूद है। गौजवा से शहरबिन किश्तवाड़ को लोगों ने बताया कि वहाँ के कुछ रास्तों से महकमा मुतलका ने बर्फ हटाने की खातिर जो JCB भेजी है, उससे मामूली सी हिस्से तक की बर्फ हटाने का काम किया गया और मशीन दूसरे रास्ते के लिए रवाना की गई थी। इस पर अवाम ने एहतजाज नुमा शिकायत की और अब मुतलकिन ने उन्हें यकीन दिलाया है कि हर सड़क से बर्फ हटा दी जाएगी। बारिश बारानी की वजह से स्टारी पाउडर के करीब पैदा हुई फिसलन की वजह से एक गाड़ी को जो हादसा पेश आया था, जिसमें 3 अफराद की मौत वाक़या हो गई थी, के आखिरी रसूम अदा कर दिए गए हैं। बताया जाता है कि कल की शदीद बर्फबारी की वजह से एक बाप अपने बेटे के आखिरी रसूम की अदायगी में शामिल न हो सका है। इस हुई बारिश और बर्फबारी से अक्सर सूखे हुए चश्मों में से फिर पानी मुयसर होने की उम्मीदें कायम हो गई हैं। वहीं जिला किश्तवाड़ के अक्सर जंगलात में लगी आग भी बुझ गई है और हर सू फैले हुए धुएं का भी खात्मा हो गया है। जंगलात में लगी इस आग से हजारों सरसब्ज और देवकामत दरख्तान राख हो गए हैं। न सिर्फ इतना बल्कि सैकड़ों जानवरों परिंदों की जानें भी तलफ हो गई है। इधर जिला किश्तवाड़ के फॉरेस्ट डिवीजन किश्तवाड़, जो हिमाचल प्रदेश से मिलने वाली हद से गौजवा तक फैला हुआ है, के FDCL एक्सट्रैक्शन डिवीजन किश्तवाड़ के कंपार्टमेंट नंबर 29 के में शिटाक किए गए सिलेबस की एक खासी तादाद वहाँ लगी आग की जद में आकर खाकिस्तर हो गई है। शहरबीन को महकमा मुतल्लिका के जिम्मेदार ने बताया कि तकरीबन 9000 स्लीपर्स वहाँ जल चुके हैं, जबकि ठेकेदार मुतल्लिका कहना है कि 14000 से ज्यादा स्लीपर्स जल गए हैं। पूछा जा सकता है कि इन स्लीपर्स को वक्त मुकर्रर के अंदर मंडी में क्यों पहुँचाया नहीं गया था और तब तक उनकी हिफाजत का माकूल इंतजाम क्यों नहीं किया गया था। महकमा का कहना है कि स्लीपर्स को निकालने से लेकर मुतय्यना मंडी तक पहुंचाने की जिम्मेदारी मुतल्लिका ठेकेदार की होती है, जबकि ठेकेदार का कहना है कि यह जिम्मेदारी महकमा की होती है। आखिर किस या किन की गफलत शायरी से 1.5 करोड़ रुपयों की मालियत की ये लकड़ी जल गई है, अगर तहकीकात की जाए जिसकी मांग की जा रही है तो हक़ाइक़ सामने आ सकेंगे। इधर कुछाल और सुरूर से मालूम हुआ है कि बारिश बर्फबारी शुरू होने से ही इन इलाकों में बिजली गुल हो गई है, जिसे जल्द से जल्द बहाल किया जाना चाहिए और रास्ता सड़कों को भी काबिल आमद और रफ्त बना दिया जाना चाहिए। किश्तवाड़ में आज धूप खिली रही और हजारों मकामी व गैर मकामी लोगों ने तफरीही मैदान में पहुंचकर खूब बर्फ से खेला और तस्वीर कशी भी की। किश्तवाड़ से मुश्ताक देव की रिपोर्ट आपने सुनी। इधर कश्मीर यूनिवर्सिटी की तरफ से कल यानी 30 दिसंबर को मुनक्किद किए जाने वाले सभी इम्तिहान मुलतवी किए गए हैं। इस सिलसिले में यूनिवर्सिटी के कंट्रोलर इम्तिहानात माजिद उज़ ज़मा का कहना है कि सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाली एक खबर कि यूनिवर्सिटी की तरफ से कल के इम्तिहानात शेड्यूल के मुताबिक लिए जाएंगे झूठी है और कल यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई इम्तिहान मुनक्किद नहीं होगा। शहरबीन जारी है, हमारे साथ रहिएगा। मून SWR PVC पाइप्स एंड फिटिंग्स। जी हाँ, मून वाटर टंकियां बनाने वाले अब लाए हैं मजबूत, पाईदार और आला तरीन क्वालिटी के मून SWR PVC पाइप्स एंड फिटिंग्स। बस नाम ही काफी है, मून SWR PVC पाइप्स एंड फिटिंग्स। अब की सर्दियों में सब सेट रहेगा। 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 खाइबर OPC ग्रेड 53 सर्दियों में भी मजबूती से सेट हो जाए तो आपके सर्दियों में मकान, दुकान, डैम सब सेट रहेंगे। खाइबर सीमेंट, दिल से बनाओ। जम्मू कश्मीर के हर घर की आवाज शहरबीन आप आकाशवाणी श्रीनगर से मीडियम वेव और FM के अलावा आकाशवाणी कुपवाड़ा और भद्रवा के साथ साथ DTH और आकाशवाणी के मोबाइल ऐप पे सुन रहे हैं, जिसके नतीजे में मकामी आबादी को उबूर मरूर में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लिंक रोड बंद होने के बायस लोग जरूरी सौदा सल्फ हासिल करने में भी परेशानियां महसूस कर रहे हैं। मुतासर आबादी मुतालबा करती है कि इन लिंक रोड से फौरन बर्फ हटा दी जाए ताकि उन्हें राहत महसूस हो। नदी मर्ग लंगखोल से बोल रहा हूँ, क्योंकि ये पिछली बार बर्फबारी 2 दिन में हुई, जिसके लिए हमारी अभी भी रोडें बंद है। जो सिरपुरा रोड, सिरधुंद
दूसरी लंखल रोड भी बंद है, दुबदुपन रोड भी बंद है। कल एक हमारा पेशेंट यहाँ से उठाकर धमाल ले जाना पड़ा, आज वहां से लेकर वापस डिलीवरी का केस था, घर तक पैदल कंधे पर उठाया। मैंने आपको फोटो भी डाली, इसलिए मैं सहरबीन का शुक्रगुजार हूँ अगर ये हमारा मसला अहले हुकाम तक पहुँचाएं। अगर हम अफसर हजरातों से फ़ोन पर बात करते हैं मशीन भेजो या बर्फ क्यों नहीं हटाई, वो बोलते हैं हमारे पास में मशीन नहीं है। तो इसलिए आवाम ये चीज़ पूछती है अगर ये थोड़ी बर्फ नहीं हटाई गई, अगर ज़्यादा बर्फ हो जाए तो हमारा क्या हाल होगा। कुलगाम जिले के बाला इलाकों में लिंक रोड्स बंद पड़े हैं, लोग मुश्किलात के शिकंजे में हैं, अपने मामूलात ज़िंदगी खासे मुतासिर कर रखे हैं। जिले के दर्जनों बालाई इलाकों में अभी भी बिजली और पानी की फराहमी मुकम्मल तौर पर बहाल किया जाना बाकी है, जबकि लिंक रोड्स पर बर्फ जमा रहने के बाइस कितने ही देहात की आबादी उबूर मरूर में दिक्कतों का सामना कर रही है। जिले के बेशतर इलाकों में अगरचे बर्फबारी के बाद से दर्ज हरारत में खासी बेहतरी आई है, अलबत्ता सियाती मकाम पहलगाम में दर्ज हरारत अभी भी -8 डिग्री सेल्सियस बताया जाता है। एक रिपोर्ट के साथ अनंतनाग से एस तारिक। हालिया बर्फबारी के बाद जिला इंतजामिया अनंतनाग ने लगभग तमाम छोटी बड़ी राब्ता सड़कों पर बर्फ साफ करके उन्हें आमद रफ्त के काबिल बना दिया है। ताहम अभी तक जिला के बलाई इलाकों में 20% राब्ता सड़कों से बर्फ हटाने का काम बाकी है, जिन्हें जिला इंतजामिया ने आज शाम तक साफ करने की यकीन दहानी कराई है। पहलगाम के दूर दराज मज़ाफात में रिपोर्ट फाइल करने तक बहुत सी अंदरूनी और लिंक रोड आमद रफ्त के लिए बंद पड़े हैं, जबकि कुकरनाग तहसील के मागरेपोरा, गडोल, बकरवाल, चेक वायलू, सदपोरा, दुरवाई, लारनू, कपरन, वेरीनाग, बड़वट, बरारी आंगन से ओथुसु शागत तक के बालाई सड़कों से बर्फ हटाने का काम अभी भी मुकम्मल नहीं हुआ है। नौशहरा से करम गोजर बस्ती में मामूलात जिंदगी बुरी तरह मुतासिर हुई। सड़कों पर जमी हुई बर्फ की तह जगह जगह फिसलन का बायस बन रही है, जिसके बायस कई इलाकों में अभी तक गाड़ियों की आमद रफ्त में रुकावटें पैदा हो रही है। कई इलाकों से ये इत्तला मौसूल हुई है कि बर्फबारी से कई मकानात के छतों और दरख्तों को भारी नुकसान पहुंचा है। बेशतर इलाकों